Very good morning to everyone. This is the sum we will be doing in front of your screen. P and Q, where partners sharing profits in the ratio of 2 is to 1. So there are two partners doing a partnership business, P and Q, who share their profits in the ratio of 2 is to 1. So ये highlight करना बनता है. We have to highlight this. And further, their balance sheet on 31 March 2012, on which date they converted their business into a company, was as follows. Means this is a sum of conversion where P and Q partners doing a partnership business sharing profit in the ratio of 2 is to 1 decided to convert their business into a company. इन्होंने क्या डिसाइड किया, बिजनेस को कन्वर्ट करना है पार्टनरशिप फर्म से टू अ कंपनी. So before conversion, what is their balance sheet position is given in the question. Creditor is there. There is a mortgage on freehold premises, means keeping aside the mortgage, keeping aside the premises, they have taken a loan, means a secured loan hai by securing freehold premise. 20,000 का लोन लिया है. And there are capital balances of P and Q, 40,000 and 20,000. In the asset side, what is there? Cash balance is there. In the asset side, cash balance is there. I'm sorry. Cash balance is there. Debtor is there. Stock is there. Machinery, freehold premises. The company, now these are the assets. Now let us read ahead paragraph mein what is given. The company took over all the assets and liabilities except mortgage of freehold premises, means all the assets were taken, all the assets and liabilities were taken except one asset, one liability, which is mortgage of freehold premise. मतलब ये liability को छोड़ के mortgage of freehold premise, ये liability को छोड़ के all the assets and liabilities were taken over. The company took over all the assets and liabilities except what they say, except mortgage of freehold premise. Means ये जो है, ये liability को छोड़ के, ये liability को छोड़ के all other liabilities has been taken over for a purchase price, for a purchase price of rupees 1,20,000. Can anyone tell me ये 1,20,000 क्या है? What is this 1,20,000? They say all the company took over all the assets and liabilities except mortgage loan. Usko chhod ke all the assets and liabilities has been taken over for the purchase price of 1,20,000, for the purchase price of 1,20,000. Correct. This 1,20,000 is purchase price, or you may say purchase consideration. This is PC, purchase consideration. Payable as means discharge भी दिया है. ये 1,20,000 को कंपनी कैसे सेटिस्फाई करेगी? हाउ द कंपनी विल सेटल दिस पीसी? 24,000 in cash, 48,000 in debenture, and the balance in equity shares of rupees 100 each. मतलब 1,20,000 में 24,000 will be cash, 48,000 will be debentures, and the remaining whatever minus करके मिलेगा balance will be equity shares of rupees 100 each. So now they have told close the books of the firm after the above transaction have been carried out. Mortgage loan has been paid. तो mortgage loan को pay करना है, वो partners will have to do.
and partners agreed to share the debentures and shares in the proportion of their final capital. मतलब अभी डिबेंचर एंड शेयर को डिवाइड करना पड़ेगा. सो डिबेंचर एंड शेयर को कौन से बेसिस में दे विल डिवाइड? दे विल डिवाइड इन द प्रपोर्शन ऑफ द फाइनल कैपिटल. मीन्स एवरी सम हाउ डू वी डू? क्रेडिट साइड जो कैपिटल का रहेगा, जहाँ पे बैलेंस रहेगा, रियलाइजेशन प्रॉफिट रहेगा, उसको ऐड करके जो भी फाइनल कैपिटल बनेगा उसका रेशो निकाल के अकॉर्डिंगली वी विल डिवाइड द डिबेंचर एंड शेयर्स. सो व्हाट आर वी टोल्ड? प्रिपेयर लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ फर्म, जर्नल एंट्रीज and balance sheet in the books of purchasing company. Journal entry and balance sheet in the book of purchasing company. This I will show you because this will be new. Rest things you should be able to understand. So PC kitna hai? How much is the purchase consideration? No need to calculate because it is directly given in the question. 1,20,000 directly given in the question. 1,20,000. You may write here कि ये कौन सा मेथड है. अगर तुमको लिखना है it is under या सिर्फ डायरेक्टली लमसम मेथड. लमसम मेथड. सो दिस इज डन. एक और चीज हम लोग करते हैं. एक बार once our PC is decided, we see उसको settle कैसे किया है. That settlement of PC is known as discharge of purchase consideration. So कैसे किया है क्वेश्चन में दिया है. कैश कितना है? Payable as cash rupees. Yeah, I am not writing rupees. 24,000 is cash. 24,000 is cash. So we will write 24,000 cash and then debenture है 48,000. So we will write debentures 48,000. उसके बाद में क्या? बैलेंस इन इक्विटी शेयर्स. पर इक्विटी शेयर्स का अमाउंट तो नहीं दिया. जैसे बैलेंस, तो बैलेंस निकालना पड़ेगा. वील हैव टू फाइंड आउट द बैलेंस. तो वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे. लेकिन टोटल परचेज कंसिडरेशन कितना है दैट वी नो ना. परचेज कंसिडरेशन इज 1,20,000. प्लीज फाइंड आउट द बैलेंस अमाउंट कितना है. माइनस करके देखो बैलेंस कितना आ रहा है. हाउ मच बैलेंस आर यू गेटिंग? 1,20,000 में से 24,000 और 48,000 माइनस करो. देखो बैलेंस कितना आ रहा है. आर यू गेटिंग 48,000? आर यू गेटिंग 48,000 एज बैलेंस? So that 48,000 is what? Is the equity share. So we will write here 48,000. So that 48,000 is balance which was not given in the question. That is equity shares. Now what we have to do? वही सेम स्टेप जो हर सब में we do. हमें सबसे पहले क्या करेंगे? सारे पार्टनर्स का बैलेंस ट्रांसफ़र कर लेते हैं. P&Q का बैलेंस कितना है क्वेश्चन में चेक करो. 40,000, 20,000. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वी विल ट्रांसफ़र 40,000 एंड 20,000. नाउ वी विल गो टू द रियलाइजेशन अकाउंट. डेबिट साइड में टू वेरियस असेट्स अकाउंट. टू वेरियस असेट्स अकाउंट. सारे असेट्स यहाँ पे कर ले. सारे असेट्स ट्रांसफ़र कर लेते हैं. ऑल असेट्स हैज बीन टेकन ओवर. मीन्स कैश बैंक बैलेंस को भी ले लिया है. क्वेश्चन में बोला है देखो फर्स्ट पैराग्राफ में
company took over all the assets and liabilities. Last sum it was fixed asset and stock, उसी को लेके गए थे. But यहाँ पे all the asset, company took over all the assets and liability except mortgage loan. तो mortgage loan पे करना है, बाकी सारे assets and liabilities को this new company has taken over conversion के बाद. So इसका अमाउंट देख लेते हैं, कॉपी करेंगे and we will paste here. So that is our second step after writing the balances. Now our third step, by various liabilities. Now let us see क्या liabilities है question में. There are two liabilities. One is there are actually how many liabilities? क्रेडिटर, मॉर्गेज लोन एंड कैपिटल. कैपिटल तो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, तो अभी क्या बचा? नाउ व्हाट वी हैव इज रिमेनिंग क्रेडिटर एंड मॉर्गेज लोन, जिसको यहाँ पे लिख लेते. क्रेडिटर है एंड मॉर्गेज लोन इज द मॉर्गेज ऑन फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, एंड देन वी हैव this amount we will copy, control C, this amount we will copy, control C. So this is also done. Now our next step वो भी same है, by limited company account we have to write the PC. So PC is how much? We know that 1,20,000. So by limited company, इसका दूसरा entry to realization account, we will write here 1,20,000. This is also done. Now see whether there is any asset not taken over by the new company. Is there any asset not taken over by the new company? No. वो करने से पहले एक और चीज करते जो हम हर सम में we are doing. Discharge of PC लिख लेते हैं इधर. By cash 24,000 given in the question. नाउ डोंट टेल मी ये 24,000 कहाँ से आया. हमने इधर डिस्चार्ज ऑफ पीसी लिखा है एंड हियर ऑल्सो दे आर गिवन 1,20,000 पेएबल एज 24,000 इन कैश. बाकी का व्हाट इज दैट? डिबेंचर एंड शेयर्स. तो ये डिस्चार्ज क्वेश्चन में दिया हुआ है एंड हमने अलग से बनाया भी है. सो व्हाट वी विल राइट, 1 minute, what is the amount given? The amount is given 48,000. So 48,000 debentures का है 48,000 एंड शेयर्स का भी उतना ही है. हमने बैलेंसिंग फिगर निकाला. बाय इक्विटी शेयर्स इज ऑल्सो 48,000. सी ईयर ये हो गया. नाउ जस्ट कैलकुलेट, टैली करो, ये टैली हो जाएगा 1,20,000. नाउ कैश अकाउंट प्रिपेयर किया है तो कैश का बाई कैश इधर हो जाएगा टू लिमिटेड कंपनी अकाउंट 24,000. हम डिबेंचर एंड इक्विटी शेयर्स अकाउंट भी बना सकते हैं विच आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड, बट यू कैन प्रिपेयर इट एज अ होमवर्क बिकॉज इन द प्रीवियस सम्स आई हैव डन इट. क्या करना है? बाई का इधर टू लिमिटेड कंपनी आएगा और जब पार्टनर्स कैपिटल में वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो उसका दूसरा एंट्री क्रेडिट में आएगा एंड दैट अकाउंट विल गेट टैलीड. यू कैन लुक एट द प्रीवियस सम्स सो दैट कैसे डिबेंचर एंड
इक्विटी शेयर्स अकाउंट बनेगा. डू यू वांट मी टू प्रिपेयर? बिकॉज यहाँ पे है ना बैलेंस शीट और जर्नल एंट्रीज भी है, इसलिए मैंने वो नहीं किया है. दैट आई एम नॉट डूइंग. नाउ व्हेन वी कम टू द, when if time will remain, I will do that account also. Now see here, बाय लिमिटेड यहाँ पे हो गया. हम रियलाइजेशन अकाउंट में आते हैं. ऐसा कोई असेट तो नहीं है जिसे न्यू कंपनी इज नॉट टेकिंग ओवर, बिकॉज ऑल द असेट्स आर टेकन ओवर बाय द न्यू कंपनी. बट देयर इज वन लाइबिलिटी विच द न्यू कंपनी इज नॉट टेकिंग ओवर, एंड क्वेश्चन में बोला है उसे पे करना है. सी व्हेन वी सी लुक इनटू द क्वेश्चन, दे से mortgage loan has been paid. मॉर्गेज लोन हैज बीन पेड, मतलब मॉर्गेज लोन को पे करना है. तो पे करेंगे तो यहाँ पे मॉर्गेज लोन इधर है, मॉर्गेज लोन इज इन द क्रेडिट. उसको पे करेंगे तो डेबिट में वी विल हैव टू पे मॉर्गेज लोन. सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मॉर्गेज लोन? जरा देखो, हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ मॉर्गेज लोन? 20,000. यहाँ से भी देख सकते थे, इट इज 20,000. सो विल राइट हियर 20,000. सो इट इज हाउ मच? 20,000. सो हमने लिख लिया 20,000. नाउ what we will do, this is done. नाउ इसका दूसरा इफेक्ट भी देना पड़ेगा. टू कैश becomes by realization. How much? 20,000. Now close the realization account. क्लोज, बिकॉज एक ही ऐसा लाइबिलिटी था. क्लोज द रियलाइजेशन अकाउंट. ओ 1,20,000, 1,40,000. ये साइड हो जाएगा 2,00,000. ये साइड में भी होप द क्रेडिट इज हैवी. सी डेबिट माइनस करके क्या अमाउंट आ रहा है? व्हाट अमाउंट आर यू गेटिंग? सी व्हाट अमाउंट आर यू गेटिंग? व्हाट अमाउंट आर यू गेटिंग? How much are you getting? What is the amount of assets? 1,40,000 एंड 1,60,000 रहेगा. 1,60,000. सो क्योंकि टोटल ऑफ बैलेंस शीट इज 1,40,000 और ये 20 को ऐड करेंगे तो डेबिट साइड विल बी 1,60,000. तो ये जो भी प्रॉफिट है विल गो टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. जो भी प्रॉफिट है, ये मतलब प्रॉफिट है. कैसे प्रॉफिट है समझा? क्रेडिट इज मोर, द टोटल ऑफ क्रेडिट इज मोर एज कंपेयर टू डेबिट. टोटल ऑफ क्रेडिट इज मोर. तो कितना डेबिट का टोटल है? 1,00,000. डेबिट का टोटल है 1,60,000 और क्रेडिट का टोटल है 2,00,000. सो इसका मतलब क्रेडिट इज मोर. इफ क्रेडिट इज मोर इट्स प्रॉफिट. क्रेडिट इज मोर इट्स प्रॉफिट. रेशो क्या है? 2:1, मतलब 2 + 1 3. 2/3, 1/3. तो प्रॉफिट कितना मिला? प्रॉफिट मिला 40,000. प्रॉफिट मिला 40,000. सो ये 40,000 को ये रेशो में डिवाइड करो. हाउ मच आर यू गेटिंग? प्रॉफिट को ये रेशो में डिवाइड करो. हाउ मच आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग 26,667 and 13,333. When you divide 40,000, you will get 26,667 and 13,333. तो टू पार्टनर्स कैपिटल इधर हो जाएगा बाई रियलाइजेशन. बाई रियलाइजेशन. 1 minute. So I will write here by realization. So this mouse is running. One minute, huh? Control Z.
ये कंट्रोल में नहीं आ रहा। भगवान, ओ नो, दिस इज रियलाइजेशन अकाउंट। बस मैं रियलाइजेशन लिखती है, कंट्रोल में ही नहीं आ रहा मेरे। सो रियलाइजेशन का कितना आया, 26,667, एंड ये कितना आया, 13,333। लिख लिया एट लास्ट। सो इसके बाद क्या करना, इसको बंद करना है। इसको बंद करेंगे तो यू गेट 42,667, sorry not 42, how much you get, 66,667, and ये कितना मिलता है, 33,333। सो ये जो हमारा फाइनल कैपिटल का रेशो है, इससे हमें क्या डिवाइड करना है, डिबेंचर्स को डिवाइड करना है। पीसी में क्या क्या मिल रहा है, इक्विटी शेयर्स को डिवाइड करना है, एंड बाय कैश विल बी द बैलेंसिंग फिगर। सो सेम अमाउंट इधर भी लिखना है, 66,667, और ये है 33,333। तो अब ये रेशो से हमें क्या करना है, वी हैव टू डिवाइड डिबेंचर्स एंड इक्विटी शेयर। सो यहाँ पे आई गो टू द वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट डिबेंचर्स एंड इक्विटी शेयर, दोनों का अमाउंट तो सेम है, तो सेम ही आएगा। इक्विटी शेयर इन व्हाट रेशो, 66, व्हाट इज द रेशो, 66,667। तो मतलब वो दोनों को ऐड करने पे 1 लाख होता है। तो 66 कौन सा रेशो है, 66,667। सो 66,667 रेशो क्या है उसका, दूसरा क्या है, 33,333, 33,333। सो यहाँ पे वी विल राइट, so we will write here, what is it, yeah, this mouse is also getting stuck. This is 33,333, god, 33,333। सो ये रेशो में डिवाइड करना है। सो इक्विटी शेयर कितना है, इक्विटी शेयर का देखते हैं। इक्विटी शेयर इज 48,000, इक्विटी शेयर इज हाउ मच, 48,000। सो विल राइट हियर 48,000 इंटू 66, किसके लिए पहले निकालते पी के लिए। तो पी का इक्विटी शेयर निकालते वक्त इक्विटी शेयर का अमाउंट है 48,000, एंड पी को देना है, पी का फाइनल कैपिटल बैलेंस है 66,667। सो 66,667 डिवाइड बाई, दोनों को ऐड करो, रेशो निकालते वक्त दोनों को ऐड करो, यू विल गेट 1 लाख। तो देखो 48,000 का क्या आंसर आ रहा है, व्हेन यू डिवाइड लाइक दिस, एंड सेम वे यू हैव टू डू फॉर क्यू। क्यू के लिए भी सेम ऐसे ही करना है। क्यू के लिए भी सेम ऐसे ही करना है। 48,000, 48,000, 1 minute,
48,000 into what is the amount? 33,333. 33,333. This is 33,333. 33,333 upon 1 lakh. अपॉन 1 लाख. मुझे आंसर बता दो ना क्या है, क्या आंसर आ रहा है व्हेन यू डिवाइड दिस, बिकॉज फॉर बोथ इट विल बी द सेम. आर यू गेटिंग 32,000 and 16,000? My laptop cursor is getting stuck again and again. This one is irritating me. This thing is irritating now. Hope you're getting the answer. This is getting 16,000. This is coming to 16,000. And this is coming to 32,000. Hope you all have also got the answer. 16,000 and 32,000. See here. तो हम लोग को डिबेंचर का भी सेम अमाउंट है, तो सेम ही आने वाला डिबेंचर के लिए भी. तो आई विल राइट हियर डिबेंचर का भी इट इज 32,000 and 16,000, बिकॉज यही रेशो से दोनों को डिवाइड करना है, इक्विटी शेयर को भी एंड प्रेफरेंस शेयर्स को भी. सॉरी प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, इक्विटी शेयर एंड डिबेंचर दोनों को सेम ही रेशो से डिवाइड करना था. तो अभी जरा बैलेंसिंग फिगर क्या आ रहा है देखो. वॉट एवर विल बी द बैलेंस विल गो टू कैश बैंक. Whatever will be the balance will go to cash bank. Is it coming 667? And here it is coming 1,333. So यहाँ पे देखेंगे बाई कैश बैंक में, इधर लिखेंगे दूसरा बाई कैश बैंक. तो पार्टनर्स कैपिटल में पार्टनर्स कैपिटल में बाई कैश है, तो यहाँ पे हो जाएगा बाई पार्टनर्स कैपिटल. बाई पार्टनर्स कैपिटल, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो कौन दो लोग पार्टनर है, वो हु टू पार्टनर्स आर देयर, पी एंड क्यू. सो यहाँ पे नीचे लिख लेते पी और क्यू. पी क्यू. सो उन लोग का कितना मिला, 2,667 एंड 1,333. इसके साथ ये टैली होके कितना आना चाहिए दोनों जगह, 24,000. 24,000 and this is done. Now what is remaining? नाउ हमें न्यू कंपनी के बुक में जर्नल एंट्री पास करना है. तो जर्नल एंट्री, दिस इज द न्यू कंपनी. फॉर्म किस में कन्वर्ट हुआ है, कंपनी में. तो न्यू कंपनी है, तो इसमें हमेशा जो एंट्री होता है उसको बोलते हैं बिजनेस परचेस अकाउंट. तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है बिजनेस परचेस अकाउंट. व्हाट वी विल राइट, ये लोग दीज आर परचेसिंग द बिजनेस. तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बिजनेस परचेस
अकाउंट, ये वाला एंट्री हमेशा सेम रहेगा, तो यहाँ पे हमेशा लिखना है बिजनेस परचेस अकाउंट, 1 मिनट, बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे क्या लिखना है, कितने में बिजनेस परचेस किया है न्यू फॉर कंपनी ने. नाउ यू हैव टू थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंपनी, बिकॉज हम कंपनी के बुक में जर्नल एंट्री कर रहे हैं, तो कंपनी ने क्या किया, बिजनेस परचेस किया, तो इट विल बी ऑलवेज द सेम एंट्री, पहला वाला बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू vendor account. Who is the vendor? वेंडर इज द पार्टनरशिप फर्म, तो उसको हम लोग रेफर करते हैं वेंडर. चाहिए तो तुम लोग यहाँ पे लिख सकते हो, वेंडर मतलब कौन है, ये फर्म है. वेंडर मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं, ओल्ड फर्म के बारे में बात कर रहे हैं, विच हैज नाउ बीन कन्वर्टेड इनटू कंपनी, विच हैज नाउ बीन कन्वर्टेड इनटू कंपनी, तो उसके बारे में बात हो रही है. तो यहाँ लिखेंगे 1,20,000. सेम अमाउंट कितने में बेचा, इन्होंने बेचा 1,20,000 में और कंपनी ने खरीदा 1,20,000 में, तो इसको बोलेंगे बीइंग बिजनेस परचेस्ड, बीइंग बिजनेस परचेस्ड. ये पहला वाला एंट्री में कोई कंफ्यूजन है, क्या किया है, बिजनेस को परचेस किया है, बिजनेस को परचेस किया है, तो एंट्री हमेशा कैसा रहेगा, सेम एंट्री याद करना है, बिजनेस परचेस अकाउंट टू वेंडर अकाउंट, एंड अमाउंट में हमेशा पीसी का अमाउंट लिखना है. अब सेकेंड एंट्री क्या रहेगा, तीन ही एंट्रीज है, सेकेंड एंट्री क्या रहेगा, सेकेंड एंट्री में हम ये जो कंपनी, दिस कंपनी विच हैज गॉट फॉर्म्ड, इसमें क्या असेट्स एंड क्या लाइबिलिटीज है, हमें वो लिखना है. तो हमेशा पीसी अगर नेट एसेट में होगा तो उसमें बराबर दिया रहेगा कि न्यू कंपनी जो फॉर्म हुआ है आफ्टर कन्वर्जन, उसमें क्या क्या असेट्स है, उसमें क्या क्या असेट्स एंड क्या क्या लाइबिलिटीज है, that will be given in the question. So what we will do, we will see, यहाँ पे क्वेश्चन में किसी भी असेट का नया वैल्यू नहीं दिया, यहाँ पे कोई भी असेट का नया वैल्यू नहीं दिया, मतलब डायरेक्टली बोला है कंपनी टुक ऑल द असेट एंड लाइबिलिटी फॉर 1,20,000. If new value of any asset is given, मतलब company will take that asset in that new value, but because कुछ भी new value नहीं दिया, सारा का सारा ओल्ड वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, सारे असेट्स, जितने भी सारे असेट्स को नया फर्म लेके गई है, तो पूरा हम लोग कॉपी करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल वी. आई थिंक एक एक करके लिखना पड़ेगा. कैश अकाउंट डेबिट, क्या अमाउंट है कैश का, लेट मी राइट वन बाय वन, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z. ओके, कौन सा अकाउंट है, कौन सा असेट लेके गया, कैश अकाउंट डेबिट 14,000. कैसे पता, बैलेंस शीट में दिया हुआ है. 1 मिनट, कैश अकाउंट 14,000, डेटर 52, स्टॉक 32, मशीनरी 10 एंड फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 32. किसका भी नया वैल्यू नहीं दिया, तो हमें ओल्ड वैल्यू ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी असेट का नया वैल्यू नहीं दिया, सो हमें क्या लिखना पड़ेगा, वील हैव टू राइट द ओल्ड वैल्यू. तो कैश के बाद डेटर्स, डेटर्स अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना है 52,000,
डेटर्स अकाउंट डेबिट 52,000. दिस इज इरिटेटिंग. डेटर्स के बाद क्या है? स्टॉक मशीनरी फ्री होल्ड प्रीमाइस. स्टॉक अकाउंट स्टॉक अकाउंट डेबिट. स्टॉक अकाउंट का वैल्यू है 32,000. फिर उसके बाद वी हैव मशीनरी अकाउंट डेबिट. मशीनरी का वैल्यू है 10,000. मशीनरी का वैल्यू है 10,000. So we'll write 10,000. We will write here 10,000. So we will write here 10,000. 10,000. आफ्टर मशीनरी कौन सा एसेट दिया है? फ्री होल्ड प्रीमाइसेस दिया है. फ्री होल्ड प्रीमाइसेस का अमाउंट दिया है 32,000 गिवन इन द बैलेंस शीट. तो इसके बाद सारे लाइबिलिटी को भी एक लाइन छोड़ना है. सारे लाइबिलिटी को भी नया फर्म लेके गया है. तो सारे असेट्स एंड लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी यहाँ आएगा. लाइबिलिटी कौन सा है? कौन सारे लाइबिलिटी को लेके गया? ऑल लाइबिलिटी एक्सेप्ट मॉर्गेज ऑफ फ्री होल्ड प्रीमाइस. तो मॉर्गेज ऑफ फ्री होल्ड प्रीमाइस को छोड़ के तो ओनली वन लाइबिलिटी इज देयर, क्रेडिटर. सो क्रेडिटर इट हैज टेकन. सो यहाँ पे लिखेंगे टू क्रेडिटर. सो विल राइट हियर टू क्रेडिटर. एंड क्रेडिटर का भी न्यू वैल्यू इज नॉट गिवन. सो वी हैव टू टेक द ओल्ड वैल्यू. क्रेडिटर creditors. So creditors का amount is how much given in the question? It is creditors amount is 60,000. So we will write here 60,000. एंड उसके बाद हम लोग ने जो यहाँ पे बिजनेस परचेज करके वी आर रिटर्न ईयर इन द डेबिट, वो भी क्या करने वाला है? एक्सप्लेन यू दिस. क्या होता है कि जब पीसी द कंपनी इज पेइंग द पीसी, तो दे आर व्हाट दे आर डूइंग? दे आर पेइंग 1,20,000 टू द business. They are paying 1,20,000 to the vendor. तो 1,20,000 जो दे रहे, that is for business purchase. कितना दे रहे? 1,20,000. लेकिन उन लोग साथ में लाइबिलिटी क्रेडिटर को भी ले रहे. मीन्स द न्यू कंपनी विच इज गेटिंग स्टार्टेड, इट इज टेकिंग ऑल दिस असेट एंड इट इज टेकिंग what it is taking, it is paying. हम जब क्रेडिटर्स को लेके जा रहे, मतलब न्यू फर्म ये क्रेडिटर्स को पे करेगा और साथ में पीसी का 1,20,000 भी पे करेगा ओल्ड फर्म को. तो ये सारे असेट्स को लेके जाके ये क्रेडिटर को दे विल बी पेइंग. एंड ये बिजनेस पर परचेज करते हुए दे हैव पेड 1,20,000 टू द ओल्ड फर्म. तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि ये जब हम लोग एंट्री करते हैं तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए. तुम देखो यहाँ पे 1,80,000 आ रहा है. इज द डेबिट, add all the debit, is it coming 1,80,000? Normally in journal both the sides should be same. दोनों साइड का टोटल सेम होना चाहिए इन द जर्नल. डेबिट एंड क्रेडिट दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए. बट यू विल सी दैट यहाँ पे सेम है क्या? एड 14,000, 52,000, 32,000, 10,000 एंड 32,000 आपको मिलेगा जो बैलेंस शीट का टोटल है, क्योंकि हमने सारे इसको ऐड किया. दिस विल बी 1,40,000. ये क्या रहेगा? 1,40,000.
ये सबको ऐड करेंगे तो ये है 1,40,000 और ये है 1,80,000। तो डेबिट इज लेस। तो वो डेबिट लेस क्यों है? वो डेबिट में कभी भी, डेबिट अगर कभी भी कम रहेगा तो वो बैलेंस को हम बोलते हैं गुडविल। मतलब बिजनेस ने क्या किया है, मतलब कंपनी ने क्या किया है, ओल्ड फर्म को 40,000 एक्स्ट्रा पे किया है। तो दैट एक्स्ट्रा पेमेंट व्हाट इज मेड इज नोन एज गुडविल। सो यू विल ऑलवेज, जब भी हम ये करेंगे तो या तो ये डेबिट क्रेडिट दोनों टैली होगा। अगर टैली नहीं हुआ तो डेबिट में आप डिफरेंस देखोगे। डेबिट में आप क्या देखोगे? देयर विल बी अ डिफरेंस, डेबिट का वैल्यू कम रहेगा। जैसे क्रेडिट वाज 1,80,000 एंड डेबिट वाज ओनली 1,40,000। तो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस को हमने क्या बोला? वो डिफरेंस को हमने बोला गुडविल। दैट डिफरेंस इज व्हाट? दैट डिफरेंस जो, मतलब कंपनी ने क्या किया, जो कन्वर्टिंग फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, उसको एक्स्ट्रा पैसा दिया। जो एक्स्ट्रा मनी वाज गिवन, दैट एक्स्ट्रा मनी इज नोन एज गुडविल। लेकिन कभी ऐसा हो गया क्वेश्चन में कि डेबिट का साइड हैवी है, क्रेडिट में कम है, मतलब असेट का वैल्यू ज्यादा है बट पीसी और लाइबिलिटी कम पे किया, मतलब परचेज कंसिडरेशन कम पे किया, लेकिन असेट का वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा वैल्यू का असेट लिया और बदले में कम पैसा पे किया, तो ये कंपनी के लिए प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्रेडिट में डिफरेंस लिखेंगे और वो डिफरेंस को हम बोलते हैं, वो डिफरेंस को हम बोलते हैं, व्हाट डू वी से, दैट डिफरेंस हैज कैपिटल रिजर्व। तो हम क्या डिफरेंस को बोलते हैं? कैपिटल रिजर्व। तो वो डिफरेंस को अगर कभी क्रेडिट में डिफरेंस आया तो लिखना पड़ेगा टू कैपिटल रिजर्व। ऐसे नॉर्मली होगा नहीं, हमेशा तुम देखोगे कि डेबिट में ही डिफरेंस आ रहा है। लेकिन कभी इन केस, if it is a objective question and it has been asked if PC is paid less compared to the asset, तो कम पे किया तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व में। वो प्रॉफिट को किधर ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व में। तो ये नरेशन को तो ये मतलब समझा? अगर डेबिट इज लेस तो गुडविल, अगर क्रेडिट इज लेस तो कैपिटल रिजर्व। तो बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट में आया तो गुडविल, क्रेडिट में आया तो कैपिटल रिजर्व। इसका नरेशन क्या बोलेंगे? बीइंग असेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय कंपनी, टेकन ओवर बाय कंपनी। ये सारे असेट्स एंड लाइबिलिटीज है जो नया कंपनी ने ले लिया। अब थर्ड एंड लास्ट, अच्छा इसको ये नहीं आया, ओके नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन जो थर्ड एंट्री है, वो थर्ड एंट्री क्या होगा? डिस्चार्ज ऑफ पीसी का। पीसी कैसे डिस्चार्ज किया है उसका। तो यहाँ पे देखो क्रेडिट में वेंडर है, हु विल गेट द पीसी? पीसी किसको मिलता है? वेंडर को। तो वेंडर अकाउंट डेबिट, कितना पीसी दिया? 1,20,000। कितना पीसी दिया? 1,20,000। सो ये एंट्री कैसा रहेगा? पहले यहाँ बिजनेस परचेज सेकेंड एंट्री में लिखा, क्योंकि ये डेबिट में था, कैंसल करना है तो इसको क्रेडिट में लिखा। अब बिजनेस परचेज में हमने वेंडर को पैसा दिया है तो वेंडर क्रेडिट में था, अब उसको सेटल करते वक्त डेबिट में लिखा, कैंसल करने के लिए वेंडर अकाउंट। वेंडर अकाउंट को क्या क्या मिला है? कैन एनीवन टेल मी? इसको मिला है इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने का इक्विटी शेयर है? कितने का इक्विटी शेयर है? 48,000 ना। कितने का इक्विटी शेयर है जरा देखो? इट इज 48,000। डिबेंचर भी 48,000 का है। हाउ द पीसी हैड गॉट सेटल्ड वो लिखना है। तो 48,000 इक्विटी शेयर कैपिटल टू डिबेंचर्स, और कैसे क्या दिया है? डिबेंचर्स दिया है, और क्या दिया है? और क्या दिया है? कैश दिया है। कितने का कैश है?
24,000 इसको बोलेंगे व्हाट इज द नरेशन, बीइंग पीसी डिस्चार्ज, बीइंग पीसी डिस्चार्ज। यहाँ पे अगर हम 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में देंगे ना, तो यहाँ पे हमें दिखा 2 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम बताना पड़ेगा। मीन्स अगर हम यहाँ पे तो हमने शेयर फेस वैल्यू में से कुछ दिया नहीं है, अगर वी आर पेइंग द शेयर और डिबेंचर्स, अगर हम कभी भी कुछ भी सिक्योरिटी प्रीमियम में देते हैं तो वो प्रीमियम का पैसा हमेशा सिक्योरिटीज प्रीमियम में आता है। कहाँ पे आता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम में। जो भी एक्स्ट्रा पैसे में, if the share is of 100 rupees, we give the share at we issue the share at 110, तो 10 rupees is premium, वो premium will come in the security premium। but for example 100 rupees का डिबेंचर हमने 90 rupees में सेल किया, मतलब हमने डिस्काउंट में सेल किया, तो कंपनी के लिए तो ये लॉस है। तो लॉस है तो वो डिस्काउंट का पैसा हम कहाँ स्टोर करते हैं? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर करके एक अकाउंट है, उसमें दैट आई विल शो इफ सच काइंड ऑफ सम समय मिलता है तो मैं तुम लोग को बताऊंगी कि कैसे करना है। सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट में ही लिखना है, और डिस्काउंट अगर होगा तो वो डेबिट में लिखते हैं। ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, या अगर शेयर में डिस्काउंट है तो शेयर, और एक शेयर के पीछे 2 रुपए का डिस्काउंट, तो टोटल कितने शेयर है मल्टीप्लाई करके डेबिट में लिखना है अगर होगा तो। ये सब में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर प्रीमियम रहेगा तो यहाँ पे लिखना है क्रेडिट में, प्रीमियम का पैसा मतलब कंपनी के लिए इट इज अ प्रॉफिट, तो लिखना है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम में आता है, डिस्काउंट का पैसा डेबिट में, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर या डिबेंचर करके लिखना। शेयर में डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट ऑन शेयर, डिबेंचर में डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, ऐसे करके लिखना है। टिल हियर इट इज डन, बस इतना ही एंट्रीज है। आई अगेन रिपीट, पहला वाला बिजनेस परचेज जिसमें पीसी का अमाउंट लिखना है, सेकेंड वाला जिसमें सारे असेट्स लिखना है जो नया फर्म लेके गया है, जिसका हम अमालगमेशन में बैलेंस शीट बनाते थे, वो सब लिखना है, एंड जो लाइबिलिटी नया फर्म लेके गया है वो लिखना है, एंड ये जो बिजनेस परचेज में पीसी दिया है डेबिट में था, क्रेडिट में लिखना है। और थर्ड वाले एंट्री में डिस्चार्ज ऑफ पीसी जो हमने पहले से बना के रखा है, वी हैव ऑलरेडी मेड डिस्चार्ज ऑफ पीसी, यहाँ पे वो लिखना है कि क्या क्या पीसी में दिया है। क्या दिया है? इक्विटी शेयर दिया है, डिबेंचर दिया है, एंड कैश दिया है। दैट एंड किसको दिया है? वेंडर को। किसको दिया है? वेंडर को, ओल्ड फर्म को। तो क्रेडिट का ऑपोजिट इसको कैंसल करना है, तो डेबिट में लिखा, एंड दीज आर द एंट्रीज। नाउ वी फाइनली मूव टू अवर बैलेंस शीट। फाइनली अब हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट, नाउ पे अटेंशन एवरीवन, बैलेंस शीट को हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। एक को बोलते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। कितना कॉलम बनाना है? अब तुम लोग वर्टिकल में बैलेंस शीट बनाओगे तो पर्टिकुलर नोट टू अकाउंट, जिसमें अगर हम लोग कुछ व्हाट इज दिस नोट्स टू अकाउंट? नोट्स टू अकाउंट मतलब अगर हम कुछ भी वर्किंग नोट करते हैं दिखाने के लिए कि अंदर क्या क्या है, क्या, क्योंकि यहाँ पे ना वी जस्ट राइट द टोटल, जैसे इक्विटी एंड लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी साइड को हम क्या बोलते हैं? इक्विटी एंड लाइबिलिटी। पे अटेंशन, बैलेंस शीट में दो साइड्स है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, और दूसरा जिसको बोलते हैं असेट। सो इक्विटी एंड लाइबिलिटी में इक्विटी रेफर्स टू, इक्विटी मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड,
इक्विटी मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड। कंपनी में कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स होते। कंपनी में कौन होते? शेयर होल्डर्स। कंपनी के ओनर्स कौन होते? शेयर होल्डर्स। सो इक्विटी मतलब शेयर होल्डर का पैसा, शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड में क्या आता है? शेयर कैपिटल आता है, एंड दूसरा आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्या दो चीज आता है? शेयर कैपिटल आता है और दूसरा आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। हमारे क्वेश्चन में जाओ, हमारे पास कंपनी के पास कौन सा शेयर कैपिटल है? कंपनी के पास कौन सा शेयर कैपिटल है? कंपनी हैज ओनली इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर इक्विटी प्रेफरेंस दोनों होता तो हमें यहाँ पे नीचे लिखना पड़ता इक्विटी, जैसे नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स मतलब वर्किंग नोट। नोट्स टू अकाउंट मतलब क्या? वर्किंग नोट। तो नंबर 1 क्या है? शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट क्या है? 48,000। तो ये हो गया पहला नोट। तो यहाँ पे लिखा नोट नंबर 1 और लिखा इधर 48,000। नोट मतलब क्या? जस्ट नीचे लिखने का और उसका टोटल जाके बैलेंस शीट के फॉर्मेट में लिखने का। दैट इज नोन एज नोट्स टू अकाउंट। मीन्स डिस्क्राइबिंग व्हाट इज देयर इन द फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्या क्या भरा हुआ है, क्या क्या चीजें हैं, उसको एक के नीचे एक करके टोटल करके लिखना इज नोट्स टू अकाउंट। रिजर्व एंड सरप्लस है क्या कंपनी में? कोई भी रिजर्व है? कोई भी रिजर्व है? देखो अभी रिजर्व एंड सरप्लस देखना है ना, तो हमें सिर्फ ये 3 एंट्री देखना है। कोई भी रिजर्व है? अब बैलेंस शीट सिर्फ ये 3 एंट्री के ऊपर बनाना है। बैलेंस शीट सिर्फ ये 3 एंट्री देख के बनाना है। तो क्योंकि ये कंपनी का बैलेंस शीट है, कुछ भी नहीं है रिजर्व एंड सरप्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे कुछ नहीं है तो नील। इसके बाद हम क्या करते हैं? बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लाइबिलिटी करके दिया है ना, तो इक्विटी मतलब मैंने बोला शेयर होल्डर्स फंड को बोलते हैं। इक्विटी मतलब व्हाट? शेयर होल्डर्स फंड। सो अभी क्या करना है? अभी इक्विटी तो हो गया, अभी बचा है लाइबिलिटीज। अभी बचा है लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज मतलब दो टाइप का होता है, नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी। तो यहाँ पे लिखेंगे बी। कैपिटल ए था शेयर होल्डर फंड, अब कैपिटल बी में लिखेंगे नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटी मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। नॉन करंट लाइबिलिटी मतलब होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है? हमें ना सिर्फ ये 3 एंट्री देखना है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हमारे पास डिबेंचर है 1 2 3, सिर्फ 3 ही एंट्री देखो, मतलब सिर्फ सेकेंड और थर्ड एंट्री ही देखो, बस हो गया। तो हमारे पास कौन सा लॉन्ग टर्म बोरोइंग है? हमारे पास डिबेंचर है। डिबेंचर का अमाउंट कितना है? राइट डाउन 48,000। इसके बाद हमें लिखना होता है सी। कैपिटल सी। दो टाइप का लाइबिलिटी होता है, नॉन करंट लाइबिलिटी और एक दूसरा होता है करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में आता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में हम लिखते हैं बैंक ओवर ड्राफ्ट। क्या लिखते हैं? बैंक ओवर ड्राफ्ट। अब क्वेश्चन में बैंक ओवर ड्राफ्ट है क्या? देखो क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट है क्या? नहीं। हमारे पास कैश है 14,000। व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट? नेगेटिव कैश बैलेंस। हमारे पास कैश आया ओल्ड कंपनी से, हमने 14,000 लिया। ओल्ड कंपनी से हमने 14,000 लिया और पे किया 24,000। इज इट पॉसिबल? आपके पास था 14,000 और आपने कैश में पे किया 24,000। मीन्स इज इट अ पॉजिटिव कैश बैलेंस और अ नेगेटिव कैश बैलेंस? टेल मी।
आपके पास 14,000 था कैश में, आपने पे किया 24,000, मतलब व्हाट इज इट अ नेगेटिव कैश बैलेंस? नेगेटिव आंसर मिलेगा। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे या नोट्स टू अकाउंट में भी लिख सकते हैं, तो हमारे पास 14,000 था कैश, कैश कितना था 14,000, और पे कितना किया, माइनस कितना किया 24,000, मतलब 10,000 नेगेटिव आ गया। दैट नेगेटिव कैश बैलेंस इज नथिंग बट बैंक ओवरड्राफ्ट। वो नेगेटिव कैश बैलेंस को हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। उसके अलावा ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स मतलब क्या होता है, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल को हम बोलते हैं ट्रेड पेबल्स। अब देखो लाइबिलिटी साइड में देखो, हमारे पास कौन सा लाइबिलिटी है, ये सब असेट्स है और ये लाइबिलिटी है। कौन सा लाइबिलिटी है, क्रेडिटर। उसका अमाउंट क्या है, उसका अमाउंट है 60,000। सो हमने लिखा, और कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो लाइबिलिटी साइड हो गया टोटल। टोटल करेंगे। अब हम लोग आते हैं असेट्स में। अब हम लोग आते असेट्स में, तो असेट्स को भी हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। एक को बोलते हैं नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट्स मतलब लॉन्ग टर्म असेट्स। नॉन करंट असेट में क्या लिखते हैं हम, प्रॉपर्टी। नॉन करंट असेट में हम लिखते हैं प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसको हम बोलते हैं, इसको देन वी से टैंजिबल asset and intangible asset. टैंजिबल असेट आर दोस असेट, लॉन्ग टर्म फिक्स असेट, जिसको हम देख सकते, टच कर सकते, फील कर सकते। तो सेकेंड एंट्री में जाओ, टैंजिबल असेट कितना है, टैंजिबल दे लॉ, टैंजिबल मतलब फिक्स असेट क्या है, प्लांट एंड मशीनरी है, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस है। तो दोनों को ऐड करो, कितना होता है 32 प्लस 10, कितना होता है, यहाँ पे लिखेंगे हम टैंजिबल असेट है 42,000 चाहिए, तो यहाँ पे ब्रैकेट में ही लिख लेते हैं क्या है यहाँ पे, मशीनरी प्लस फ्री होल्ड। मशीनरी और फ्री होल्ड, ये दोनों को ऐड किया तो यू गॉट 42,000। इंटेंजिबल एसेट में क्या है, इंटेंजिबल एसेट में क्या है, क्वेश्चन में गुडविल है बराबर। इंटेंजिबल एसेट में ऊपर जाके देखो, सेकेंड एंट्री में देखो व्हाट इज, बिकॉज हम कंपनी का बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो कंपनी के पास जो असेट है हम वो ही लिख सकते हैं। तो कंपनी के पास कौन सा असेट है, इंटेंजिबल असेट, इट इज गुडविल। सो यहाँ पे लिखेंगे 40,000। गुडविल का अमाउंट क्या दिया है, गुडविल का अमाउंट दिया है 40,000, तो यहाँ लिखेंगे 40,000। ये हो गया। अब बी, जिसको बोलते हम करंट असेट, मतलब असेट में दो क्लासिफिकेशन है, नॉन करंट असेट, करंट असेट। अब बचा कौन सा नॉन करंट असेट है, देखो डेटर है, स्टॉक है, कैश है। तो स्टॉक, डेटर, कैश, तीन ही चीज बचा है। स्टॉक को हम बोलते हैं इन्वेंटरीज, स्टॉक को हम बोलते हैं इन्वेंटरीज, स्टॉक को इन्वेंटरीज बोलते हैं। डेटर को बोलते हैं ट्रेड पेबल, सॉरी ट्रेड रिसीवेबल। डेटर को बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स, और कैश को बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लेकिन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो है ही नहीं, बिकॉज कैश जितना आया था उससे ज़्यादा हमने पे कर दिया। स्टॉक कितना है 32,000 और डेटर कितना है 52,000। सो यहाँ पे लिखेंगे 32,000
32,000 एंड 52,000। इन्वेंट्री कितना है? इन्वेंट्री है, स्टॉक है, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक 32,000 एंड डेटर है 52,000। तुम लोग को कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर और बिल रिसीवेबल दोनों को बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो कुछ है ही नहीं, ये लिखने का भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जितना कैश था वो तो हमने पूरा पे कर दिया, उससे ज़्यादा पे कर दिया। या तो बैंक ओवरड्राफ्ट रहेगा या तो ये रहेगा। अगर दो क्वेश्चन में और कैश बैलेंस होता तो यहाँ लिखते, बट क्वेश्चन में और कोई कैश बैलेंस नहीं है तो नील। अब इसको टोटल करो, तुम्हारा बैलेंस शीट टैली होना चाहिए। अवर बैलेंस शीट शुड टैली, सी व्हाट टैली अमाउंट यू आर गेटिंग। 48,000, 48,000, 10,000, 60,000, 1,66,000 here, 42,000, 40, 30 and ये 1,66,000. So with this the sum is done.